Hello students, welcome to the next lecture of states of matter. In this lecture we are going to discuss two laws, Graham's law of diffusion of gases and second is Dalton's law of partial pressure. Now first let's start with the idea of Graham's law of diffusion. Now what is the simple meaning of diffusion? Diffusion क्या होता है? तो suppose in a closed room, in a classroom, if I spray a perfume on the first bench, near the area of first bench, that fragrance can be smelled by the person on the last bench. इसका मतलब क्या हो गया? Whenever a gas is released in a closed container, the gas occupy the entire volume of the container irrespective of the other gas present. अब classroom में air भी होगा और air is a mixture of gases, but irrespective of the other gases, if I release a perfume, if I spray a perfume on the first bench, it can be smelled by the person on the last bench. क्यों? क्योंकि perfume के gas molecule throughout the container अपने आप को spread करेंगे, पूरा volume occupy करेंगे irrespective of the other gas present. Or we can say the gas is released at a high concentration, at a high pressure. It moves from the area of high concentration, high pressure to the area of low concentration, low pressure. अगर मैं फर्स्ट बेंच के आसपास गैस रिलीज कर रहा हूँ, परफ्यूम रिलीज कर रहा हूँ, तो वहाँ पर परफ्यूम का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होगा परफ्यूम का, इसका मतलब प्रेशर ज़्यादा होगा. फिर वो क्या करेगा, वो पूरे लास्ट बेंच तक के परफ्यूम मूव करेगा, मतलब इट इज़ मूविंग फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिफ्यूजन. ये डिफ्यूजन लिक्विड्स एंड सॉलिड में देखने को भी मिलता है. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ लिक्विड, यू टेक अ बीकर कंटेनिंग वाटर, प्योर वाटर, तो ट्रांसपेरेंट है. यू एड अ ड्रॉप ऑफ इंक. That ink won't remain on the surface. It will penetrate. The ink molecules will penetrate throughout the body of the water and it will spread throughout the bulk of water. पूरे पानी के अंदर वो स्प्रेड हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कलर ब्लू हो जाएगा. इसका मतलब क्या हो गया, इंक के मॉलिक्यूल आर occupying the entire volume irrespective of the water molecule present. That is also called as diffusion. So diffusion is basically a gas occupying the entire volume of the container irrespective of the other gas present, or you can say a gas is moving from its खुद के high concentration, high pressure area से low concentration, low pressure area में travel करेगा. That is also called as what? Diffusion. Now for example, suppose if I take a container, पार्टीशन है यहाँ पर कंटेनर में, ओके. सो ये मैंने एक ही कंटेनर में दो पार्टीशन की है. Now suppose left hand side of the container is completely filled with a helium gas. So here it is a high concentration of helium, okay. और ये साइड मैंने वैक्यूम रखा है, ठीक है. Yes, left hand side is vacuum, right hand side is vacuum. So this is high concentration or you can say area of high pressure of helium, क्योंकि हीलियम के मॉलिक्यूल ज़्यादा है, हीलियम के एटम ज़्यादा है, तो वो वॉल्स पे जाके कोलाइड करेंगे, दे विल एक्सर्ट अ प्रेशर. So this is high pressure, high concentration of helium. Now suppose if I remove this partition, so what will happen? The helium molecule will start moving to the right hand side, will occupy the entire volume of the container till the pressure becomes constant. Okay, so it is moving from the area of high pressure, high concentration to the area of low concentration, और वो पूरा कंटेनर ऑक्यूपाई कर रहा है. दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन. ओके, अब डिफ्यूजन को आप ऐसा भी देख सकते हो कि सपोज यही कंटेनर में हम लोग ने पार्टीशन लिया है. एट लेफ्ट हैंड साइड यू हैव अ हीलियम गैस, एट राइट हैंड साइड यू हैव अ जेनॉन गैस. आपने इसको ओपन किया, तो जब इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर जो हीलियम होगा एक सर्टेन प्रेशर पे होगा, यहाँ पर जेनॉन होगा सर्टेन प्रेशर पे होगा. हीलियम विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड, जेनॉन विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड. दे विल ऑक्यूपाई द एंटायर स्पेस अवेलेबल. हीलियम भी पूरा स्पेस अवेलेबल है, तो उस पर हीलियम के मॉलिक्यूल सब जगह पे आपको दिखाई देंगे, प्लस जेनॉन के मॉलिक्यूल्स भी सब जगह दिखाई देंगे. सो these gases will occupy the entire volume of the container irrespective of the other gas present. That is called as diffusion. Simple. So helium is moving from its area of high concentration to the area of low concentration. Xenon is moving from its area of high concentration, खुद के high concentration area से वो low concentration में जा रहा है. That is called as diffusion. Now what is effusion?
इफ्यूजन क्या होता है? तो सपोज इन दिस कंटेनर ऑफ हीलियम वी मेक अ स्मॉल होल, इफ यू मेक अ पिन होल और यहाँ से हीलियम रिलीज हो रहा है, सो द रिलीज ऑफ गैस थ्रू अ पिन होल इज कॉल्ड एज इफ्यूजन, EFFU. सो इफ्यूजन क्या है? इफ्यूजन एक डिफ्यूजन ही है but through a pinhole. So that is called as effusion. When the gas is leaked, the gas is released from a pinhole, that is called as effusion. For example, we take a balloon, we fill that balloon with air, फिर आप उसको रख दो, फिर सुबह देखो आफ्टर अ नाइट व्हेन यू सी बलून का साइज थोड़ा कम हो गया है. क्यों कम हो गया? बिकॉज सम अमाउंट ऑफ एयर इज रिलीज्ड फ्रॉम अ पिन होल. सो वी कैन से द एयर इज इफ्यूज्ड आउट थ्रू अ बलून. सो डिफ्यूजन और इफ्यूजन फंडा आपको समझ में आ गया. Now after diffusion or effusion we are going to study Gram's law of diffusion and effusion. यहाँ पर हम लोग diffusion और effusion के बारे में पढ़ते हैं with respect to the speed of gas, and speed of gas is nothing but the rate of gas. So we are going to study in Gram's law of diffusion about the rate of diffusion of gas, the speed of diffusion of gas. So I'll write down your rate of diffusion or effusion. So Gram's law says, अब ये तो बहुत ही सिंपल है समझने के लिए. अब खुद सोचो, दो गैस है, एक गैस हैवी है, मोलार मास ज़्यादा है, एक गैस लाइट है, मोलार मास कम है. अगर हम लोग किसी रूम में दोनों गैस रिलीज़ करते हैं, तो जो लाइटर गैस है जिसका मोलार मास कम है, जिसका डेंसिटी कम है, वो बहुत फास्ट भागेगा, तो वो जल्दी डिफ्यूज़ हो जाएगा. एक गैस जिसका मोलार मास ज़्यादा है, जिसका डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो स्लो मूव करेगा. इसका मतलब क्या हो गया? इफ़ द गैस इज़ लाइटर, इफ़ इट्स मोलार मास इज़ लेस, इफ़ इट्स डेंसिटी इज़ लेस, तो इट विल मूव एट अ वेरी फास्टर रेट, सो इट विल डिफ्यूज़ एंड इफ्यूज़ एट अ वेरी फास्टर रेट. फॉर एग्जाम्पल, इन अ कंटेनर if two gases I have taken, helium and xenon, वही लिया है, पिन होल बना दिया. So if I take two gases in a container, इसमें xenon भी है और helium भी. helium का मोलार मास कम है, xenon का मोलार मास ज़्यादा है. If I make a pin hole, गैस यहाँ से रिलीज होना चालू हो जाएगा. तो क्वेश्चन ये है कि आफ्टर सर्टेन टाइम, सपोज आफ्टर 15 सेकेंड, कौन सा गैस सबसे ज़्यादा बाहर आया? तो ऑब्वियसली हीलियम, क्योंकि हीलियम का मोलार मास कम है तो मूवमेंट ज़्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, तो जल्दी बाहर आएगा. प्लस कौन सा गैस स्लो बाहर आएगा? xenon. वाई? बिकॉज इट इज़ हैवी. तो वी कैन से more amount of helium is released as compared to xenon in the same time because of the lighter molar mass, and also we can say कि more amount of xenon remains in the container because का molar mass ज़्यादा है तो वो जल्दी बाहर नहीं आ पाया. Similarly मिक्सिंग के लिए भी ऐसा ही है. आप एक कंटेनर में दो गैस इंट्रोड्यूस करो, लाइटर एंड हैवी, सो लाइटर गैस विल ऑक्यूपाई द एंटायर कंटेनर मोर फास्टर रेट एज कंपेयर टू व्हाट heavier gas. That is why it is clearly indicated, experimentally it is proven and it is easy to understand कि अगर गैस हैवी है तो उसका मूवमेंट स्लो होगा, तो उसका डिफ्यूजन, स्पीड ऑफ डिफ्यूजन, स्पीड ऑफ इफ्यूजन भी कम होगा. सो वी कैन से इन दिस लॉ, according to Gram's law, that rate of diffusion of any gas is inversely proportional to square root of molar mass, or if molar mass is divided by 2. so if you remember, हम लोग अगर molar mass की बात करते हैं तो vapor density, the density of gas is equal to 2 into molar mass. so molar mass की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? density. so it is inversely proportional to square root of density. मतलब if the gas is heavy, if molar mass is more, if the density is more, then the speed of diffusion will be less. Plus rate of diffusion can also be defined as volume of gas diffuse upon time taken for diffusion. वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज अपॉन टाइम टेकन ऑफ डिफ्यूजन. मतलब दो गैस को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं. एक गैस, दोनों गैस का वॉल्यूम, दोनों गैस हम लोग 2 लीटर्स में हम लोगों ने लिया है कंटेनर में. आफ्टर 1 मिनट गैस ए बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो गया, तो उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगा, तो कंटेनर में उसका वॉल्यूम कम होगा, लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है. गैस बी का कम वॉल्यूम रिलीज़ हो रहा है,
So if we calculate the rate, तो rate is nothing but volume of gas released upon time taken for diffusion और volume of gas diffuse. तो जितना लाइटर गैस रहेगा वो उतना ज़्यादा वॉल्यूम में डिफ्यूज़ होगा, क्योंकि वो उतने ज़्यादा अमाउंट में जाएगा, मिक्स हो जाएगा. सो रेट ऑफ डिफ्यूजन कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड एज वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज अपॉन टाइम टेकन फॉर डिफ्यूजन. अगर गैस लाइट है तो कम टाइम में ज़्यादा वॉल्यूम डिफ्यूज़ होगा, देयरफॉर स्पीड विल बी मोर. टाइम इज़ लेस, वॉल्यूम इज़ मोर, स्पीड इज़ मोर. अगर हेवियर गैस है तो ज़्यादा टाइम लगेगा और कम वॉल्यूम डिफ्यूज़ होगा, देयरफॉर रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी लेस इन दिस केस. ओके, सो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखने का कि द मूवमेंट ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन प्रेशर. प्रेशर ज़्यादा है मतलब गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा है तो डिफ्यूजन ज़्यादा होगा. इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. अगर गैस का टेम्परेचर ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी इज़ मोर. इफ़ काइनेटिक एनर्जी इज़ मोर, गैस विल मूव एट अ वेरी फास्टर रेट, तो डिफ्यूजन विल बी मोर. देन इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन मोलार मास. अगर मोलार मास ज़्यादा है या डेंसिटी ज़्यादा है तो गैस का मूवमेंट कम होगा. ठीक है. इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम. इफ इट इज़ अ लाइटर गैस, मोर वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी डिफ्यूज. सो आपको एक चीज़ दिमाग में रखने का कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास, इन सब पे डिपेंड करता है. मतलब अगर मैंने प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम कांस्टेंट लिया है, देन द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. इसके लिए ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को डिफाइन कैसा करते हैं? ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इज that the rate of the gas diffuse is inversely proportional to molar mass or inversely proportional to square root of density at constant temperature and pressure. अगर आप टेम्परेचर प्रेशर चेंज करोगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी चेंज हो जाएगा. ओके, सो नाउ यूजिंग दिस फॉर्मूला, सपोज अगर मैंने दो गैस लिया है, दोनों गैस का मुझे रेट ऑफ डिफ्यूजन कंपेयर करना है, तो वी कैन राइट डाउन दैट R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, सिंस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास, m2 by n1, okay, or it is under root of d2 upon d1, or it is see, rate of is directly proportional to volume of gas diffused, so v1 upon time t1 into t2 upon v2. We can use this formula for calculation. Plus one more formula we can use, that rate of diffusion of first gas upon second gas is equal to P1 upon P2, directly proportional to pressure, the under root of M2 inversely proportional to molar mass into T1 upon M1 into T2. तो rate of diffusion is directly proportional to pressure of gas, inversely proportional to molar mass. heavy gas है तो कम move होगा, and directly proportional to temperature. क्यों? अगर गैस का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसका मूवमेंट ज़्यादा होगा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. इफ टेम्परेचर इज मोर, काइनेटिक एनर्जी विल बी मोर, गैस विल मूव एट अ वेरी फास्टर रेट. प्लस वन मोर फॉर्मूला यू कैन ऑल्सो यूज फॉर द कैलकुलेशन, दैट R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू डेल्टा P1 चेंज इन प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस इंटू T2 अपॉन डेल्टा P2 इंटू T1. ये आप कब यूज़ करोगे? इफ़ द वॉल्यूम ऑफ गैस इज गिवन कॉन्स्टेंट. मतलब दो गैस दिया है, दोनों का वॉल्यूम सेम है और दोनों डिफ्यूज़ हो रहे हैं या इफ्यूज़ हो रहे हैं, सो यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस फार्मूला फॉर द कैलकुलेशन. सो गाइस, यू नीड टू रिमेंबर कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन of gas is inversely proportional to molar mass of the gas, inversely proportional to square root of density of gas, but directly proportional to temperature and pressure and volume. अब इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे? सपोज दो गैसेस आपको दे दिया है, दोनों गैसेस का आपको एक का रेट ऑफ डिफ्यूजन दिया और एक का रेट ऑफ डिफ्यूजन फाइंड करना है. फॉर एग्जांपल एक गैस आपको दिया है हाइड्रोजन गैस, इसका मोलार मास 2 होता है. एक गैस आपको दिया है ऑक्सीजन गैस, इसका मोलार मास 32 होता है. अच्छा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन दिया है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन सपोज दिया है 4 ml पर सेकेंड, और आपको इसका क्वेश्चन पूछ रहा है. सो वी कैन यूज अ फॉर्मूला दैट रेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन रेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन इनवर्सली. इसकी जगह पे आप डाल सकते हो 4 अपॉन रेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन 32 अपॉन 2. ये कैंसिल हो गया, दिस इज 16, रूट ऑफ 16 इज 4.
So we can say that the rate of oxygen is 4/4, that is 1 ml per second. तो ये हाइड्रोजन 4 ml per second में डिफ्यूज़ हो रहा है और ऑक्सीजन 1 ml per second में डिफ्यूज़ हो रहा है. मतलब द स्पीड ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज 4 टाइम एज कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ हाइड्रोजन डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि वो हेवियर है. इसके लिए ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इज अ परफेक्ट मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ हेवियर गैसेस, जिनके बीच में मोलार मास के बहुत डिफरेंस होते हैं. उन गैसेस को या आइसोटोपिक गैसेस को, अब आइसोटोप आपको पता होगा, आइसोटोप्स आर दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर. तो मास डिफरेंट होने की वजह से उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन डिफरेंट हो जाता है. मतलब फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस 8O16, 8O17, 8O18. अगर मैं ऑक्सीजन का 16 आइसोटोप जिसका मोलार मास 16 है और एक ऑक्सीजन है जिसका मोलार मास 18 है, अगर ये दोनों को हम लोग रेट स्टडी करेंगे तो दोनों का रेट सेम नहीं आएगा, दोनों का रेट डिफरेंट आएगा. ऑक्सीजन जिसका मोलार मास 16 है वो जल्दी रिलीज होगा एंड आइसोटोपिक ऑक्सीजन जिसका मोलार मास 18 है वो बहुत कम तरीके से डिफ्यूज होगा. सो दिस मेथड कैन ऑल्सो बी यूज फॉर सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स ऑफ गैसेस. Because of the difference in their molar mass, they will have different rate of diffusion. Okay guys, so this is all about Gram's law of diffusion. अब जो हमारा second law है, I'll rub this out. Using this you can solve various formulas. Using this formulas you can solve various questions in your MCQs. ये आपको MCQs में आएगा, ये theory में नहीं है आपके लिए for 11th standard. Now I'll rub this out. अब हम लोग नेक्स्ट लॉ पे जाएंगे. द नेक्स्ट लॉ इज Dalton's law of partial pressure. Now first of all, what is the meaning of partial pressure? पार्शल प्रेशर क्या होता है? तो पार्शल प्रेशर का सिंपल मीनिंग ये होता है, इट्स अ प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस, इट्स अ प्रेशर ऑफ सिंगल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर गैसेस. पार्शल प्रेशर इज अ, पहले याद रख लेना कि पार्शल प्रेशर इज नथिंग बट प्रेशर ऑफ सिंगल गैस इन अ mixture of 2 or more gases. That is called as partial pressure. एक ही गैस का प्रेशर निकाले हो लेकिन मिक्सचर में, प्योर नहीं. फॉर एग्जाम्पल सपोज इफ आई टेक अ कंटेनर फिल्ड विद गैस ए. ओके, तो अब ये जो ए गैस मॉलिक्यूल्स है जो गैस में है, ये जाके प्रेशर, ये जाके वॉल्स पे हिट करेंगे, कोलिजन करेंगे कंटेनर के, तो वहाँ पर क्या जनरेट होगा? प्रेशर. सो दैट प्रेशर विल बी कॉल्ड एज P0A. दिस इज प्योर प्रेशर. हम लोग प्योर प्रेशर की बात नहीं कर रहे, ये प्योर प्रेशर है, बट इसमें पार्शियल प्रेशर की बात होगी. बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि कितने डिफरेंट टाइप्स के प्रेशर आप जनरेट कर सकते हैं. फिर हम लोग ने एक कंटेनर लिया, ठीक है. इन दिस कंटेनर वी हैव गैस बी. तो ये भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो गैस बी विल एक्सर्ट प्रेशर. दिस विल बी कॉल्ड एज P0B. तो P0B विल बी कॉल्ड एज व्हाट? अगेन प्योर प्रेशर. सो वी हैव 2 गैसेस A and B, दोनों अलग अलग कंटेनर में है, अपने अपने प्रेशर एक्सर्ट करें, जिसको हम लोग प्योर प्रेशर बोलते हैं. बट व्हेन यू मिक्स देम, ये दोनों को हम लोग ने मिक्स कर दिया. मिक्स करने के बाद यू हैव इन अ कंटेनर यू मिक्स A and B. सो A and B के कंटेनर में A के भी एटम्स है प्लस B के भी एटम्स है, ठीक है. ये A और B मिलकर मिक्सचर में, बिकॉज दिस इज अ मिक्सचर, सो ये दोनों मिलके B के मॉलिक्यूल्स या B के एटम्स और A के एटम मिलकर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे. और उस प्रेशर को आप यू शेप मैनोमीटर ट्यूब से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें मर्क्यूरी फील्ड होता है. मैंने आपको बताया था हाउ टू कैलकुलेट द प्रेशर. दिस इज अ मर्क्यूरी फील्ड, यू कैन कैलकुलेट द प्रेशर. दैट प्रेशर
will be called as, that pressure will be called as total pressure. तो total pressure is the pressure exerted by mixture of gas. तो ये सेकेंड टाइप का प्रेशर हो गया. नाउ Dalton's law of partial pressure क्या बोलता है? Dalton's law of partial pressure says कि suppose we are taking two gases, so it clearly says कि the total pressure, ठीक है, वो gas mixture is equal to partial pressure of सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस. मतलब अगर दो गैस आपने कंटेनर में लिया है, दोनों मिल के जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टोटल प्रेशर. एंड इफ आई आस्क यू हाउ मच इज टोटल प्रेशर, तो यू विल से सर टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस इन अ मिक्सचर. बिकॉज पार्शियल प्रेशर क्या होता है? इट इज अ प्रेशर ऑफ सिंगल गैस इन अ मिक्सचर. फॉर एग्जाम्पल गैस ए है जो अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है 100 मिलीमीटर, गैस बी है जो अपना एक्सर्ट कर रही है प्रेशर 200 मिलीमीटर. तो जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो गैस ए का प्रेशर आता है 100 मिलीमीटर. तो दिस इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए. बिकॉज ये जो प्रेशर है ये प्योर फॉर्म में नहीं है, ये मिक्सचर में है. तो जब मिक्सचर में किसी गैस का प्रेशर निकालते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर. जब आप प्योर गैस लेते हो और कोई दूसरी गैस नहीं होती तो उसको हम लोग प्योर प्रेशर बोलते हैं. बट वी आर डीलिंग विथ पार्शियल प्रेशर. तो सपोज इसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए 100 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी दैट इज अ प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर इज 200. एंड इफ आई आस्क यू हाउ मच इज टोटल प्रेशर, आप बोलेंगे सर टोटल प्रेशर आएगा 300. वाई? बिकॉज टोटल प्रेशर इज नथिंग बट सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ टू गैसेज इन अ मिक्सचर, टू और मोर गैसेज इन अ मिक्सचर. अगर यहाँ पर 3 गैस है, so total pressure will be P1, P2 and P3, that is partial pressure of each gas. So suppose if there are 3 gases, so we write down that total pressure will be partial pressure of first gas plus partial pressure of second gas plus partial pressure of third gas. इसके लिए we write down PA plus PB because हम लोग ने इस एग्जाम्पल में 2 ही गैस लिए हैं. Okay, now in place of partial pressure we know that PV इज इक्वल टू NRT. हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूला P इज इक्वल टू NV अपॉन RT. तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A की जगह पे यू कैन राइट डाउन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन V इंटू RT. अब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कांस्टेंट है, R और T टेम्परेचर भी कांस्टेंट है. PB की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B इंटू RT अपॉन बी. ठीक है, ये 2 इक्वेशन हो गए. किसके लिए? दिस इज फॉर विच प्रेशर? टोटल प्रेशर. ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, आर टी अपॉन बी को अलग ले लेता हूँ. तो एन ए प्लस एन बी इंटू आर टी अपॉन बी दैट इज टोटल प्रेशर. नाउ एन ए एन बी क्या होता है? टोटल मोल्स. सो वी कैन से टोटल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल मोल्स इंटू आर टी अपॉन बी. ये इक्वेशन याद रखो आप. ठीक है, नाउ if I talk about only partial pressure of A, तो partial pressure ये आपका इक्वेशन 1 हो गया. partial pressure of A क्या होता है? partial pressure of A की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? number of moles of A into RT upon V. ठीक है, this is your second equation. now divide equation 2 by equation 1. तो इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 करूँगा तो मुझे मिलेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन टोटल प्रेशर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स इनटू आर टी बाई वी अपॉन आर टी अपॉन बी. तो दिस गेट कैंसल आउट, तो ये तो निकल ही गया. सो वी कैन राइट डाउन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर. नाउ डू यू रिमेंबर number of moles of any substance and number of moles of any gas upon total mole stands for mole fraction. ये हम लोगों ने सॉल्यूशंस में देखा है, सेकेंड चैप्टर में देखा है एनालिटिकल टेक्निक में कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है. सो इट इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अपॉन टोटल मोल्स, दैट इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन. मतलब अगर मैं बात कर मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट करते? एक्स से. तो इफ आई से एक्स ऑफ ए, so it is number of moles of A upon total moles. if I say x of B, तो it is number of moles of B upon total moles. और आपको ये भी याद होगा कि अगर 2 गैस है तो XA plus XB is always equal to 1.
मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 गैसेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1, क्योंकि 2 ही गैस है मिक्सचर में। अगर 3 गैस होते हैं तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 1। ये मैंने बताया था सोल्यूशंस एनालिटिकल टेक्निक्स में। सो in place of Na by Nt, Na upon Nt, we can write down mole fraction of A. So now the formula becomes the partial pressure of A is equal to mole fraction of A into total pressure. Similarly, we can also write down partial pressure of B is equal to mole fraction of B into total pressure. Okay, so this is Dalton's law of partial pressure. और अगर मैंने यहाँ पर बराबर देखोगे मोल फ्रैक्शन को कांस्टेंट निकाल लिया, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए या टोटल प्रेशर को कांस्टेंट निकाल लिया, तो अगर टोटल प्रेशर कांस्टेंट है तो इफ दिस इज कांस्टेंट देन वी कैन राइट डाउन दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। टोटल प्रेशर तो ऑब्वियसली कांस्टेंट है दोनों में, क्योंकि टोटल प्रेशर सेम ही रहेगा, तो यहाँ पर भी टोटल प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। सो दिस इज डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड 3 टाइप के प्रेशर होते। अगर आपने इंडिविजुअल गैस लिया है प्योर फॉर्म में, कुछ भी मिक्स नहीं किया, तो उसको प्योर प्रेशर बोलते हैं। दोनों गैस या 2 से ज़्यादा गैस इफ़ यू मिक्स देन you can calculate total pressure using manometer. But what is total pressure? Total pressure is sum of partial pressure of each gas in a mixture. Or what is partial pressure? Partial pressure is pressure of single individual gas in a mixture. तो obviously गैस ए, गैस बी, गैस सी, गैस डी, जितने भी गैस है 1 2 3 4 गैसेस, आपने उसको मिक्स किया, आपने टोटल प्रेशर कैलकुलेट किया, तो टोटल प्रेशर सपोज 4 गैस मिक्स किए, सो टोटल प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस प्लस सेकेंड गैस प्लस थर्ड गैस प्लस फोर्थ गैस। बट पार्शियल प्रेशर क्या होता है? partial pressure of any gas is equal to mole fraction into total pressure. मतलब you need to remember this point very thoroughly. For gas, partial pressure of any gas will be equal to mole fraction of that gas into total pressure. That is Graham's law of diffusion. अब ये ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन यूज़ करके आप मिक्सचर के गैसेस के पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन सब फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द एंटायर आइडिया अबाउट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो हम लोग यहाँ पर 2 लॉ फिनिश किया, एक था ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और दूसरा था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसके न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करना चाहिए फ्रॉम MCQs एज वेल एज फ्रॉम द टेक्स्ट बैक। Now I'll rub this out and I'll explain one more concept. About aqueous tension. Remember this concept. What is aqueous tension? Aqueous tension is partial pressure of H2O, vapors. Aqueous tension, मतलब the pressure exerted by water vapor in a mixture is called as aqueous tension. Pressure exerted by water vapor in a mixture is called as aqueous tension. Aqueous tension कहाँ जनरेट होता है? when any gas is collected over water. For example, एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज मैंने इस सिलेंडर, ध्यान से सुनना सब लोग, ध्यान से। सपोज इसके अंदर मैंने लिया है गैस, दिस इज नाइट्रोजन गैस। ओके, नाउ यहाँ पर मैंने एक ट्यूब अटैच किया है इससे। दिस ट्यूब कंसिस्ट ऑफ वाटर, इसमें पानी है, यहाँ तक कि मैंने फिल किया पानी को। यहाँ पर एक नॉब है, सपोज ये नॉब मैंने निकाल दिया। इफ़ आई रिमूव दिस नॉब, इफ़ आई ओपन इट, व्हाट विल हैपन? द नाइट्रोजन गैस विल स्टार्ट फ्लोइंग हियर, इस साइड फ्लो होना चालू हो जाएगा इन द वाटर, बट नाइट्रोजन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो जैसे ही नाइट्रोजन गैस यहाँ पर एंटर होगा, वो वाटर में बबल्स बनाएगा
और वो ऊपर जाके कलेक्ट हो जाएगा नाइट्रोजन गैस. सो वी कैन से द नाइट्रोजन इज कलेक्टेड ड्यू टू अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर. वो पानी में डिजॉल्व नहीं हो रहा है तो वो बबल्स के फॉर्म में से ऊपर जाएगा पानी के और ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, ऊपर कलेक्ट हो जाएगा. तो वी कैन से द नाइट्रोजन गैस इज कलेक्टेड ओवर वाटर. बट आई टेल यू व्हाट, यहाँ पर सिर्फ नाइट्रोजन गैस नहीं है, यहाँ पर पानी के इवेपोरेशन से, वी नो दैट इवेपोरेशन इवन टेक प्लेस एट द रूम टेम्परेचर. आप एक वेट क्लॉथ को रूम में रख दोगे तो वो भी ड्राई हो जाएगा. तो इवेपोरेशन इज अ नेचुरल फिनोमेना वेयर द लिक्विड, और यू कैन से मोर प्रिफरेबली हम लोग ने वाटर यूज़ किया है, द वाटर विल एब्जॉर्ब द एटमॉस्फेरिक हीट एंड कन्वर्ट इनटू वेपर. तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस के साथ वाटर के भी पार्टिकल्स होंगे और वो वाटर वेपर के पार्टिकल्स होंगे और वो भी अपना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे. तो जब आप इस पार्ट का, मतलब व्हेन द गैस, एनी गैस कलेक्टेड ओवर वाटर, इस पार्ट का जब आप प्रेशर कैलकुलेट करते हो तो हियर द टोटल प्रेशर विल बी partial pressure of nitrogen plus partial pressure of H2O. This partial pressure of H2O is called as aqueous tension. तो सपोज टोटल प्रेशर आपने मैनोमीटर से कैलकुलेट कर लिया 100 mm, या समझो हम लोग ने टोटल प्रेशर कैलकुलेट किया 300 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. ठीक है. पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर जो यहाँ पर जनरेट हो रहा है, सपोज वो है 20 millimeter. So what is the partial pressure of dry nitrogen? So pressure of dry nitrogen will be total pressure minus aqueous tension, that is 300 minus 20, that becomes 280 millimeter. तो ये आपका dry nitrogen का हुआ pressure. तो याद रखना, what is aqueous tension? Aqueous tension is nothing but the partial pressure of water in a mixture. कौन सा mixture? इन अ गैसियस मिक्सचर व्हेन अ गैस इज कलेक्टेड ओवर वाटर. आप कोई भी गैस को वाटर के ऊपर कलेक्ट करोगे तो उस गैस के साथ में वाटर वेपर भी प्रेजेंट रहेगा, बिकॉज इवेपोरेशन टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर. तो इवेपोरेशन की वजह से जो गैस आप वाटर के ऊपर कलेक्ट कर रहे हो उसके अंदर वाटर वेपर भी होगा. देयरफॉर द टोटल प्रेशर ऑफ द गैस विल बी प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस जो आपने कलेक्ट की है प्लस एक्वस टेंशन, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर. जब आप वेपर प्रेशर ऑफ वाटर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे टोटल प्रेशर में से, देन यू विल गेट द प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, लाइक यू हैव कैलकुलेटेड प्रेशर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन. ओके, सो दिस इज द आइडिया ऑफ एक्वस टेंशन. सो गाइज, वी हैव फिनिश ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. एंड टेल यू, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन येस इट इज़ देयर फॉर नीट एंड जेई के कैलकुलेशंस के लिए. Then we have finished Dalton's law of partial pressure, and then we have studied about aqueous tension, the idea of aqueous tension. So use this data. So till then, take care. Bye.